رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ باہر گھر کی دہلیز پر بنے زینوں پر بیٹھی جہانداد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب واچ مین نے دروازہ کھولا، کالی چمچماتی گاڑی اندر پورچ ایریا میں داخل ہوئی۔ صبور نے سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ سامنے ہی بختاور مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکلی اور دوسری سائڈ سے جہانداد بھی نکلا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی جہانداد کے منہ سے بے اختیار پھسلا، تم سوئی نہیں اب تک؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ نہیں، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی جہانداد کو کنفیوز کر گئی۔ میں چلتی ہوں جہانداد سونے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بختاور تنفر سے کہتی صبور کے برابر سے نکلنے کو تھی کہ صبور نے اس کے بازو سے تھام کر اسے روکا۔ صحیح بات ہے، بہت تھک گئی ہو تم، شام کی نکلی آدھی رات کو واپس آ رہی ہو، تھکن تو ہوئی ہوگی نا۔ اب ایسا کرو کہ آئندہ سے جب بھی میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے جانا ہو نا تو مجھے ایک بار اطلاع ضرور دے دینا، کیونکہ ان کا جو وقت تم سارا کا سارا خود پر صرف کرا چکی ہو وہ وقت میرا تھا، کچھ ان کی بیٹیوں کا تھا اور کچھ ان کا اپنا۔ جو ان کا اپنا ٹائم ہے بے شک وہ تمہیں دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر جو وقت ہمارا ہے وہ وقت صرف ہمارا ہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ارا غیرہ آ کر ہمارا وقت خود پر صرف کروائے۔ وہ تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورتی، سختی سے اپنی بات باور کرا چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بختاور جلتے لہجے میں کہتی اسے گھور رہی تھی۔ چھوڑ دیا، مجھے شوق نہیں ہے تمہارے ہاتھ کو پکڑے رکھنے کا، وہ مسکرا کر کہتی اس کا بازو چھوڑ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم یہ سب کر کے بہت اچھی لگ رہی ہو تو یہ تمہاری سوچ ہے، ایک گری ہوئی سطحی دماغ کی نفسیاتی عورت ہو تم، اور وہی لگ رہی ہو، بختاور پھنکارتے لہجے میں کہتی تن فن کرتی اندر چلی گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کی بکواس کا جواب بعد میں دینے کا سوچتی جہانداد کی طرف مڑی تھی۔ وہ گاڑی سے کچھ شاپنگ بیگز نکالتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبور کی آواز پر وہ رکا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بھویں چڑھا کر سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اندر جا رہا ہوں سونے، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا چلے میں بھی چلتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی مین ڈور کھولتی اندر گھسی تھی۔ اس سے پہلے کہ جہانداد بھی اندر داخل ہوتا، زوردار آواز کے ساتھ مین ڈور وہ اس کے منہ پہ بند کر چکی تھی۔ جہانداد ڈور کھولنے کی کوشش میں پاگل ہو گیا تھا، پر شاید وہ ڈور اندر سے لاک کر چکی تھی۔ وہ غصے میں دروازہ پیٹتے ہوئے غرایا، صبور دروازہ کھولو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چڑا تھا۔ مسٹر، اسے بدتمیزی نہیں کہتے، اسے بگڑے ہوئے کو لائن پر لانا کہتے ہیں۔ اس کی آواز دروازے کے پار اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنا غصہ پی کر رہ گیا۔ صبور، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو تو مطلب کھولو، وہ آواز میں روب پیدا کر کے بولا۔ اور میں نے کہہ دیا نا کہ دروازہ نہیں کھولوں گی تو مطلب نہیں کھولوں گی، وہ اسی کے انداز میں اسے جواب لوٹاتی۔ اسے تپا آ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے یار، بہت تھک گیا ہوں، دروازہ کھول دو میری ماں، وہ جیسے عاجز آیا تھا۔ نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، میں بھی سونے ہی جا رہی ہوں، آپ بھی باہر گھاس پر سو جائیے مچھروں کی دل چھو لینے والی محبت کے ساتھ۔ گڈ نائٹ اینڈ سویٹ ڈریمز، وہ میٹھے لہجے میں کہتی اسے غصے کی آگ میں جھلستا چھوڑ گئی۔ وہ شاپرز وہیں دہلیز پر پھینکتا واچ مین کی طرف بڑھا۔ اس کے روم کا دروازہ بجایا تو واچ مین باہر نکلا۔ واچ مین سے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ واچ مین صاحب سے تو مین ڈور لاک کروا کر صبور مین ڈور کی چابی لے چکی تھی۔ جہانداد کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اب نہ وہ گھر کے اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر، دونوں راستے بند کر چکی تھی۔ وہ کچھ سوچتا پیچھے اپنے روم کی کھڑکی کے پاس آیا۔ روم کی کھڑکیاں بھی بند دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے زور سے کھڑکی بجائی تھی، ایک بار، دو بار، آخر کار کھڑکی پر پڑا پردہ ہٹا تھا۔ وہ سامنے نمودار ہوئی تھی۔ سلائیڈنگ ونڈو کو کھولا گیا اور بڑے ہی درش لہجے میں کلام جوڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تھک گئی ہوں میں، سونا ہے مجھے، تنگ نہ کریں، صبح کی اٹھی ہوئی ہوں، پھر پورا دن گھر کے کام کرتی رہی ہوں، حالت خراب ہو گئی ہے میری، اب ونڈو مت بچانا میری، وہ غصے سے تقریباً چلائی۔ یار میں بھی انسان ہوں، تھک گیا ہوں، صبح کا اٹھا ہوں اور پھر آفس گیا تھا، میں نے بھی کام کیا تھا، پھر تمہیں باہر لے کر گیا، اس کے بعد بیچاری بختاور کو لے کر گیا تھا باہر، آخر کو میں بھی انسان ہوں، قسم سے تھک گیا ہوں، وہ روحان سا ہوا۔ میں آپ کے حرف بحرف سے متفق ہوں، اگر جو آپ جناب والا بیچاری بختاور کو باہر آؤٹنگ پر نہ لے جاتے نا تو ابھی آپ گارڈن کی بجائے اندر اپنے کمرے میں ہوتے اور سکون کی نیند سو رہے ہوتے۔ وہ بتیسی نکال کر کہتی ونڈو واپس بند کر چکی تھی اور وہ پریشان حال سا بینچ پر آ کر بیٹھا۔ باہر گارڈن میں بہت مچھر تھے،
बहुत मच्छर। उसे तो लगा था कि सुबह होने तक उसे डेंगू हो जाएगा, पर क्या करता। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा। उसे ऐसे तो कोई उम्मीद ही ना थी उससे कि सबूर ऐसा कुछ करेगी। निसफ रात को तो उसने तारे गिनते आधी रात तो उसने तारे गिनते और मच्छर मारते गुजारी थी। इतना बड़ा घर था, फिर भी मुसाफिरों से बदतर हालत थी उसकी। इससे अच्छा तो चौकीदार था, छोटा ही सही, पर कमरा तो मयस्सर था। वो तो उससे भी महरूम था उस वक्त। वो लोग घर पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मन्नत भी सो चुकी थी। सोई हुई मन्नत जाबिर के कंधों पर थी। वो ऊपर जरताशा के रूम में गया, मन्नत को लिटाया और खुद भी थका हारा लेट गया। जरताशा रूम में आई तो उसे देखकर चौंक गई। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने रूम में जाओ, सोना है मुझे। वो संजीदगी से कहती अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालने लगी। वो महज एक आंख खोलकर उसे देखता लेटा रहा और वो चिढ़ती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। फलक भी जरताशा के रूम में दाखिल हुई, पर जाबिर को वहां देखकर ठिठकी। जाबिर ने आंखें खोलकर उसे देखा। फलक, आज रात मैं ताशा के रूम में रहूंगा। वो उसे देखता नरमी और मोहब्बत से गोया हुआ। अच्छा सही है, ठीक है, मैं सोने चलती हूँ। न जाने क्यों उसका लहजा बुझ सा गया था। फलक, कल तुम्हारे रूम में सोऊंगा। वो उसकी बेचैनी तकता मोहब्बत से बोला। हम्म। वो धीरे से कहती कमरे से चली गई थी और जाबिर आंखें बंद किए ताशा के वॉशरूम खाली करने का इंतजार कर रहा था कि वो निकले तो वो भी चेंज करके सुकून महसूस कर सके। थोड़ी देर में वो बाहर थी। जाबिर ने एक नज़र उसे देखा और वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो ताशा को देखा, जो सोई हुई मन्नत को प्यार कर रही थी। उसने टॉवल खुद उठाकर सोफे पर फेंका और कदम उठाता उसके पास आया और उसके मुकाबिल बैठा। माफ़ नहीं कर सकती क्या तुम मुझे? उसने उसके हाथ थामे। किस बात की माफ़ी? कैसी माफ़ी? उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। यह अनजान बनने की अदा भी कमाल है आपकी। उसके चेहरे पर मंडलाते बालों की लट को बालों के पीछे कानों के पीछे उड़सता बोला। प्लीज़ जाओ यहाँ से, सोना है मुझे। वो उसके हाथ खुद से झटकती हुई दूर हुई। मैं यहीं सोऊंगा आज, उसने उसे तकते हुए बताया। मैंने कहा यहाँ से जाओ, फलक इंतज़ार कर रही होगी। उसने उस पर से नज़रें हटाकर कहा। ताशा, कब तक नाराज़ रहोगी? उसने उसके हसीन मुखड़े पर गहरी निगाह डालते पूछा। जब तक इस रिश्ते में बंधी हूँ तब तक। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मुझे तलाक दे दो। वो उस पर से नज़रें हटाकर बोली। ये नामुमकिन है ताशा मेरे लिए। उसके लहजे में गहरा दुख नुमाया था। अगर तुम चाहो तो इसे मुमकिन बना सकते हो, उसने धीमे लहजे में कहते अपने आंसू बहाने से रोका था खुद को। पर मैं इस बात को मुमकिन बनाना ही नहीं चाहता। वो उसको तकते हुए अटल लहजे में गोया हुआ। तो फिर मैं अदालत जाकर खुद ही खुला ले लेती हूँ, वो मजबूत लहजे में बोली। जरताशा जाबिर खानजादा, तुम मेरे निकाह में हो, अदालत के नहीं। तुम अगर कभी खुला लेना भी चाहोगी ना, तो मैं कभी इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं दूंगा, वो दरुश लहजे में कहता। जरताशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। तुम्हारी रजामंदी से कुछ नहीं होता, अदालत मुझे खुला दे ही देगी। वो खुद में ढेरों हिम्मत लाती गोया हुई। पर अफसोस, मेरी रजामंदी के बगैर अगर तुम्हें खुला मिली तो तुम फिर भी मेरे निकाह में ही रहोगी, उसने सर्द लहजे में कहते वह मुश्किल गुस्से से फूलता तनफ्फुस संभाला था। जाबिर, प्लीज़ मुझे तलाक दे दें। अब तो आपकी ज़िंदगी में फलक भी है ना, आपकी पसंदीदा बीवी, आपकी मोहब्बत। आपकी ज़िंदगी में अब मुझ जैसी अनचाही बीवी की क्या ज़रूरत है? वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। पलकों की बाढ़ को फलांगते आंसू सीधा उसके रुखसारों पर बह निकले थे। तुम्हें ये दुख है कि तुम एक अनचाही बीवी हो? उसने उसकी आंखों से निकले आंसू अपने हाथों की पोरों पर चुने थे। नहीं, मुझे इस फजूल बात का कोई दुख नहीं, वो उसका हाथ झटकती तनफ्फुर से बोली थी। वो उसकी सदा पर धीरे से हंसा। जरताशा ने फौरन उसकी कातिल मुस्कान से नज़रें चुराई। होना भी नहीं चाहिए। खैर, मुझे चाय पीनी है, बना कर दो। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए गोया हुआ। मुझे नींद आ रही है, खुद बना लो जाकर, उसने लेटने के लिए तकिया दरुस्त करते कहा। उसने एक आईब्राउ उचकाकर उसके तेवरों को तका। फजर की अजानों के आवाज़ के साथ ही वो उठी थी। वज़ू करके वॉशरूम में घुसी, वज़ू करके निकली, नमाज पढ़ी और दुआ करते उसकी आंखों के आगे रात के तमाम वाक़यात गुजरे। वो उठी और रूम से बाहर निकली, चाय चढ़ाई। चाय पकी तो 2 कपों में उंडेल कर कप ट्रे में सजाए, मेन डोर खोलकर बाहर गार्डन में आई। वो बेंच पर आड़ा तिरछा पड़ा था, आधा जिस्म बेंच पर था और आधा ज़मीन पर। वो सामने पड़े टेबल पर चाय रखती उसकी तरफ बढ़ी थी,
उसे बेखबर सोता देख उसे शरारत सूझी। गुलाब के पौधे से अधखिले गुलाब की कली तोड़ती, वो उसके सर पर झुकी। धीरे धीरे गुलाब उसके चेहरे पर फेरती, वो उसकी नींद में खलल डाल चुकी थी। उसके माथे पर शिकनों का जाल नमूदार हुआ। वो नींद से बोझल आंखें खोलता, उसका हाथ कलाई से थाम गया। उसे नाराजगी से तकता देख वो उसकी कलाई छोड़ गया। वो टेबल पर पड़े चाय के कप उठाकर उसकी तरफ आई। उसने खामोशी से कप उठा लिया। वो अपना कप थामती ट्रे अपने और उसके बीच बेंच पर खाली जगह पर रखती उसे तकने लगी, जिसका मूड अच्छा खासा खराब था। उसके मुसलसल उसे तकने पर उसने रुख मोड़कर उसे देखा। क्यों देख रही हो ऐसे? वो नरोटेपन से बोला। देख रही हूँ कि पूरी रात बाहर पड़े रहे पर अकड़ फिर भी कम ना हुई। वो अपनी उमड़ती हंसी पर काबू पाते बमुश्किल बोली। बहुत ही सस्ता मजाक था। न मुझ में पहले अकड़ थी और न अब है। हाँ, मेरा सर ज़रूर दर्द कर रहा है। पूरी रात मच्छरों से कुश्ती करता रहा मैं। थक गया हूँ। आज न जाने ऑफिस कैसे जाऊँगा मैं। वो दूर उफक को तकने लगा। गहरा नीला रंग पूरे आसमान पर छाया हुआ था। हल्का अंधेरा था और हल्की रोशनी। बड़ा ही प्यारा मंजर था। जैसे रोज जाते हैं वैसे ही आज भी जाएंगे आप ऑफिस? वो संजीदगी से बोली। सीरियसली? उसने उसे घूरा। हम्म। पूरी रात बाहर मच्छरों के साथ सोने को छोड़कर सुबह सुबह चाय जैसी इनायत करने का मकसद? वो चाय की चुस्की भरता मुस्तफसर हुआ। मुझे आपसे बात करनी थी, वो धीमे से बोली। कहो, क्या कहना है? वो रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए बोला। कल जो भी हुआ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि बख्तावर आपकी अच्छी दोस्त है, पर आपकी एक फैमिली भी है। जो वक्त आप बख्तावर को देकर आए हैं, कल वो कुछ मेरा था और कुछ आपकी औलाद का और कुछ आपका अपना वक्त। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने मुझे बताना तक भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ। माना कि हमारा ताल्लुक साजगार नहीं, पर क्या ज़रूरी है कि हम अपने बीच के मामलात को किसी गैर इंसान पर आयां करें? क्या ये गलत नहीं? हमारी ज़िंदगियों में जो भी हो रहा है ये हमारा मसला है, और जो हमारा मसला है बस वो हमारा ही मसला है। हम दूसरों पे अपने मसाइल, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करके किसी भी गैर के हाथ अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक़ के कमज़ोर होने की कड़ी नहीं दे सकते कि हर आने जाने वाला इंसान हमारी वक्ती नाराज़गी का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के फ़ायदे उठाकर चलता बने। हमारे बीच जो भी हो रहा है ये हमारी अपनी निजी ज़िंदगी है। हमें अपने ताल्लुक़ की खूबसूरती को दुनिया की नज़रों में कैसे बना कर रखना है ये हमारा काम है। हाँ, हम लड़ें झगड़ेंगे, शायद कई कई दिन तक हम कलाम भी ना करें, पर जब हम बात करेंगे तो हर शिकवा, हर शिकायत हवा हो जाएगा। पर अगर हम इन्हीं बातों को दूसरों पर आया कर देंगे तो वो इन आम सी बातों का अफसाना बना डालेंगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो अपनी बात मुकम्मल करती उसे बगौर तकने लगी। यार, मैंने हमारे बीच के ताल्लुक का कहाँ पोस्टर लगा दिया? वो हैरान हुआ। कभी कभार पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके रवैये ही हर बात को अयां कर जाते हैं। वो आसमान को तकते संजीदगी से बोली और साथ ही चाय की एक चुस्की ली। ओके, चलो मान लिया मेरी गलती थी, सॉरी, आइंदा से ख्याल रखूंगा। वो नरमी से बोला। मेरी बात समझने का शुक्रिया। वो उसकी तरफ रुख किए धीरे से मुस्कुराई। कितना प्यारा लग रहा है ना आसमान इस वक्त? वो धीरे से बोला। हाँ, आसमान तो हर वक्त ऐसे ही प्यारा होता है, बस हमें ही फुर्सत नहीं होती कि एक नज़र दूर उफ़क़ पर बिखरे कुदरत के हसीन रंगों पर भी डाल लें। सबूर ने नरमी से जवाब दिया। ये भी खूब कही आपने मोहतरमा। वो मुस्कुराया। बख्तावर कब जाएगी वापस अपने घर? उसने नरमी से पूछा। अभी वो अपने फ्लैट में कुछ रेनोवेशन करवा रही है, जैसे ही मुकम्मल होगा वो चली जाएगी। उसने आम से लहजे में जवाब दिया। अच्छा सही, मैं नाश्ता बना लूँ। आप सो जाइए, 9 बजे तक चले जाइएगा ऑफिस। कुछ घंटे सो जाइए। वो उसका और अपना कप उठाते उठी थी कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ी तो वो रुक गई और पलटी। तुम बख्तावर से इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? उसने खामोश से लहजे में पूछा। क्या मुझे बख्तावर से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए? ये वो औरत है जिसके आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाने से आप अपनी बेटियों की माँ पर शोकन लाने वाले थे। जब उस वक्त उस औरत को और आपको जाना और जवेरिया हुरिया पर तरस ना आया तो अब मुझ पर क्या खाक आएगा? वो अपनी बात मुकम्मल करती रुकी नहीं थी, मंजर से गायब हो चुकी थी, पर वो जहादात को अजीब ही किसी दुनिया में जा पहुंचा गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जवेरिया और हुरिया ये तमाम बातें सबूर को बताएंगी। उसे अजीब ही शर्मिंदगी होने लगी थी। वो सर्द आग खारिज करता सोने के लिए अंदर चला गया। जिंदगी की हर डगर अलग है, मगर मुझे उस डगर पर जाना है जिस डगर पर तुम हो। बख्तावर डाइनिंग टेबल पर बैठी बड़े ही आशिकाना अंदाज में
बख्तावर डाइनिंग टेबल पर बैठी बड़े ही शायराना अंदाज में जहांदाद को तकते बोली। जहांदाद यकदम घबरा गया था। कल की पूरी रात बाहर गुजारने के बाद उसे कोई तमन्ना नहीं थी कि दोबारा मच्छरों की संगत में अपनी रात ख्वार करे। उसने चोर नज़रों से बख्तावर को देखा तो वो मोहतरमा लगी उसे ताड़ने में मसरूफ़ थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। टेबल पर पराठे रखती सबूर ने तेवरी चढ़ाकर जहांदाद को घूरा था, मानो सारी सूरत हाल में गलती सरासर जहांदाद की हो। जहांदाद ने उसकी घूरी को नज़रअंदाज करते अपना हाथ पराठे की प्लेट की तरफ बढ़ाया था। उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया था। वो पराठे की प्लेट उठाती जवेरिया और हुरिया की तरफ बढ़ा गई थी। वो मुंतज़िर था कि कब उसकी बारी आएगी, पर यह क्या, प्लेट में पड़ा आखिरी पराठा वो अपनी प्लेट में डाल चुकी थी। जहांदाद ने उसे घूरा था। मेरा नाश्ता कहाँ है? उसने आंखें दिखाईं। आप नाश्ता करेंगे? उसने उसे मासूमियत से तका। तो हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? वो चिढ़ा था। नाश्ता करने। वो मुस्काई। तो फिर मुझे भी तो मेरा नाश्ता दो, वो बड़े ज़ब्त से बोला था। हाँ तो करें ना नाश्ता, आपके और अपने लिए ही निकाला है, एक ही प्लेट में मिलकर खाते हैं। वो जहांदाद को मुस्कुरा कर देखती प्लेट थोड़ी सी खिसका कर उसकी तरफ कर गई। जहांदाद उसकी बात पर मुस्कुराया था। क्यों नहीं, बिल्कुल साथ खाएंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे। वो मुस्कुराता हुआ निवाला बनाने लगा। जहांदाद तुम्हारा आज इंटरव्यू था ना? बख्तावर ने जहांदाद की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाही। हाँ आज दोपहर में है, उसने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। सबूर आज हम तीनों लेट हो जाएंगे, वो नाश्ता करते नरमी से उसे बताता। बख्तावर को जहर लगा। क्यों? सबूर उलझी थी। ऑफिस वर्क है, थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से लेट हो जाएंगे। उसने चाय का कप उठाया। अच्छा सही, उसने संजीदगी से कहा। जवेरिया हुरिया चलें? वो नैपकिन से हाथ पोंछता उठा। जी बाबा चलें। वो दोनों उठी थी और अपने बाप के पीछे होली। चाय पियेंगी आप? उन तीनों के जाने के बाद सबूर ने बख्तावर से चाय का पूछा। नो, मैं चाय नहीं पीती, उसने संजीदगी से जवाब दिया। सही, खाने में क्या खाना पसंद करेंगी आप, बता दीजिए, आज आपकी मेहमान नवाजी में कुछ बना ही लूँ, रसान से पूछा गया। मुझे जो खाना होगा मैं खुद बना लूँगी, और रही मेहमान नवाजी की बात, तो मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, बख्तावर ने लठ मार जवाब दिया। सही कह रही हैं आप, आपका अपना ही घर है ये, अपना घर समझकर आराम सुकून से रहिए। वैसे आपके अपने घर का रेनोवेशन कब मुकम्मल होगा? वो नरमी से बोली। तुम्हें किसने बताया? मेरे शोहर ने, वो मुस्कुराकर जवाब देती टेबल पर पड़े गंदे बर्तन समेटने लगी। जहांदाद ने हैरत से पूछा गया। जी क्यों, कोई मसला है? सबूर ने मसनूई परेशानी से पूछा। नहीं, अटक कर यकलफ्जी जवाब दिया गया और टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाती वो अपने कमरे में चली गई। सबूर ने सर उठाकर उसकी पुश्त को तका था और होले से मुस्काई थी। उस पर से ध्यान हटाती वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। जाबिर की आंख खुली तो यकदम नज़र सामने लगे वॉल क्लॉक पर गई। घड़ी की सुइयों को 10 बजाते देख वो एक झटके से उठा था। अपने बराबर में नज़र डाली तो उसकी बेटी सो रही थी, पर उस बेटी की माँ गायब थी। उसे रात की तमाम बातें याद आईं तो उसका मूड ख़राब हुआ। वो बेजारियत से उठता वॉशरूम में घुसा फ्रेश होने। नक्सक सा तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे जाने लगा था कि अभी जीनों से उतर ही रहा था कि उसके सामने मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने व्हाट्सएप ओपन किया और वीडियो खोली तो उसके होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट रेंग गई। यकदम उसका मूड फ्रेश हुआ। वो मुस्कुराता हुआ अपनी चेयर घसीट कर बैठा था। फलक और ताशा दोनों बैठी थी। जरताशा उसे नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि फलक बार बार उसे वक्फे वक्फे से निगाह उठाकर देख रही थी। वो मोबाइल साइड पर रखता, निगाहें उठाकर उसे तकता, मोहब्बत से मुस्कुराया। उसने गौर से फलक को देखा, जिसके चेहरे पर यकदम सकून सा उतर आया था महज उसके देख लेने से। नाश्ता किया आप दोनों ने? वो दोनों को नरमी से तकता पूछने लगा। नहीं, अभी कर रहे हैं, तुम्हें चाय निकाल कर दूं? फलक झट से बोली। वो उसकी बेताबी पर मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल निकाल दो, वैसे भी ये शोहर वाला प्रोटोकॉल बड़ी मुश्किल से तुम दोनों देती हो मुझे, वो दिल फरेब से लहजे में कहता मुस्कुराया। बस भी करो अब, फलक ने मुंह फुलाया उसके शिकवे पर। जरताशा मन्नत के स्कूल में एडमिशन के हवाले से तुमने कुछ सोचा? वो अभी खोई हुई सी जरताशा को तकता गोया हुआ। फलक ने निगाहें उठाकर उसे तका और जाबिर की चाय उसे थमा दी। जाबिर ने हल्की सी मुस्कान पास करके उसके हाथ से कप थाम लिया। नहीं सोचा, हमने वैसे भी यहाँ नहीं रहना, जहाँ हम जाएंगे वहाँ एडमिशन ले दूंगी उसे, वो सर्द से लहजे में कहती नज़रें झुका गई। कहाँ जा रहे हैं हम? जाबिर ने सब जानते अनजान बनकर पूछा और फलक ने भी हैरत से तका। आप लोग नहीं, सिर्फ मैं और मन्नत, वो गहरा सांस खारिज करते बोली।
कहाँ जा रही हो यार, मुझे भी ले चलो। यकदम फलक भी चहक कर बोली, जाबिर मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो बमुश्किल बोली, क्या चाहिए, दोबारा बोलो। उसने सर्द लहजे में कहा, मुझे तलाक चाहिए। वो सुन सी बैठी, किसी बुत की मानित गोया हुई। मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम्हें क्या चाहिए? वो जब्त से मुट्ठियां भींचता हुआ गोया हुआ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब के वो कुर्सी से खड़ी होती कदरे चिल्ला कर बोली। जाबिर भी कुर्सी से उठा था। हाथ में मौजूद चाय का कप उसने उठाकर ज़मीन पर पटका था। फलक सहम कर पीछे हुई थी। उसने जाबिर को पहले कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था, पर जरताशा उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। जाबिर ने जनूनी अंदाज में टेबल पर पड़ी छुरी उठाई थी और यकदम वहशी अंदाज लिए उसकी तरफ लपका था। फलक के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। जाबिर खान ने जरताशा की गर्दन पर छुरी को रखा और उसे गुद्दी से पकड़कर झिंझोड़ा, तलाक चाहिए तुम्हें? आज़ादी चाहिए तुम्हें मुझसे? ये आज़ादी मैं तुम्हें सिर्फ दो ही सूरतों में दूंगा, या तो तुम्हारे मरने से या फिर मेरे मरने से। वो खूनख्वार होता चाकू का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ा गया। उसका वहशीपन देखकर यकदम जरताशा की आंखों में भी खौफ अलकोरे लेने लगा। यकदम ही उसे अपनी गर्दन पर जलन का एहसास हुआ और फिर उसकी गर्दन से हल्की सी खून की लकीर बह निकली। जरताशा की आंखों में खून जरताशा की आंखों में खून देख मजीद खौफ उभरा था कि यकदम वो सहमे लहजे में गोया हुई, छोड़े मुझे। उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हुए। क्यों, आज़ादी नहीं चाहिए? उसने अपने हाथों की मुट्ठी से उसके बालों को जकड़ कर पूछा। जाबिर, मुझे दर्द हो रहा है, वो सिसकी। पर तुम अभी खुद आज़ादी मांग रही थी ना, उसने जनूनी अंदाज में कहा। नहीं चाहिए मुझे, छोड़ो मुझे। वो उसकी आंखों में जनूनीपन देखकर अंदर तक खौफजदा हुई थी। इससे पहले कि जाबिर कुछ कहता, पीछे से जाबिर के सर पर किसी ने भारी डंडे से कारी जरब लगाई थी। यकदम उसकी गिरफ्त जरताशा पर कमज़ोर पड़ी। दर्द से तड़प कर सर की पुश्त पर हाथ रखे उसने पीछे मुड़कर देखा तो फलक हाथ में डंडा पकड़े खड़ी थी। जरताशा उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही पीछे की तरफ हटी थी। फलक, तुम किसी दिन मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी, वो खूंखार लहजे में उस पर धाड़ा। मुझ पे ना धाड़ो, नहीं तो अभी जान ले लूंगी मैं तुम्हारी इसी डंडे से। वो अपने अंदर का खौफ छुपाते पीछे हुई। अभी तो मुझे देर हो रही है, वापस आकर देखता हूँ तुम दोनों फजूल औरतों को। वो दोनों को घूरता टेबल से अपना मोबाइल उठाता तनफन करता बाहर निकल गया। उसके निकलते ही यकदम जरताशा ज़मीन पर गिरने के से अंदाज में बैठी जैसे पैर बेजान हो गए हों। फलक ने अपने हाथ से डंडे को दूर फेंका और भागती उसके पास आई और यकदम दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी।